Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first AFSPA reimposed in 6-month riot hit areas of Manipur. तो AFSPA जो है वो reimpose हुआ है in the riot hit areas of Manipur. वहाँ पे आपको पता होगा कि recently मणिपुर में बहुत सारे riots जो है वो चल रहे हैं, तो वहाँ पर AFSPA जो है reimpose किया गया है. तो AFSPA जो power है, because it is an extraordinary power, it becomes a point of importance and we will learn about that. Second is no dual eco clearance for 39 category of industry. I think this is a very important topic. This is a very pretty important topic because you have to earlier what used to happen is you have to take 2 clearance from the government for setting up an industry, but for 39 category of industry these 2 set of you don't have to take 2 eco clearance, you just have to take 1. So this is important. And last news for the day is poor onion, tomato, potato, जो हमारा 3 सबसे important crops है, TOP या फिर POT भी हम उसको कहते हैं, potato, onion, tomato. वो क्या हुआ, इसका prices are soaringly high in the market. If you go today also you will see the prices are very high and there is no ease down in the recent time of the prices. So this is very important and very point of concern also, very big point of concern also. So these 3 are the most important news for the day. Let us start one by one. Again, before starting the class, I would want कि आप लोग जान ले कि we have a course wherein we are going to solve all the queries and problems which on all the subjects will be covered, from your pedagogy to your English to your GK to current affairs, and your GS portion and the current affairs portion will be covered. So all the sessions are would be live, and in this price range nobody is going to give you such good quality content, so you can definitely join in the class and you can see how the things are going on. ठीक है, चलिए पहला जो न्यूज़ है वो देखते हैं. AFSPA इज रीइम्पोज्ड इन 6 राइट हिट एरियाज ऑफ मणिपुर. इन मणिपुर में वेरियस एरियाज में क्या है, AFSPA जो है वो लगाया गया है. AFSPA का फुल फॉर्म क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. AFSPA इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. AFSPA इज दैट. ठीक है, तो AFSPA जो है ये क्या है, 6 जो है पुलिस स्टेशन में लगाया, जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको लगाया गया है. एंड यहाँ पर क्या है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रीइम्पोज किया है AFSPA को इन मणिपुर, declaring 6 police station limits in 5 district disturbed areas in the wake of ethnic violence in the state. तो अगेन यहाँ पर जो है ethnic violence जो है वो फिर से होने लगा है एंड इसीलिए यहाँ पर क्या है, AFSPA को जो है लागू किया गया है. The Sekmai and Lamsang police station limits in Imphal West, Lamlai in Imphal East, Jiribam station limit in Jiribam, Moirang in Bishnupur and Lemahong in Kangpokpi. ठीक है, Kangpokpi district have been declared disturbed areas to carry out well coordinated operation by security forces and contain the activities of insurgent group. तो ये कुछ 5 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में 6 पुलिस स्टेशन में AFSPA जो है वो लगाया गया है. अगेन Sekmai and Lamsang police station in Imphal West, Lamlai in Imphal East, Jiribam in Jiribam station जो है Jiribam station, Moirang in Bishnupur and Lemahong in कांगपोकपी. ठीक है, कांगपोकपी में जो है लेमाखोंग जो है वहाँ पर 6 जगहों पर ये, क्योंकि इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ और एथनिक वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है हमारा AFSPA. AFSPA इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आर्म्ड फोर्सेस को क्या दिया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जिसको हम स्पेशल पावर्स भी कहते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. AFSPA जो है ना, ये क्या है, स्पेशल पावर दिया जाता है किसको, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाता है. बहुत सारे स्टेट्स में लगा भी हुआ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बहुत सारे स्टेट्स में, एंड जम्मू कश्मीर के में भी बहुत बार जो है AFSPA लगाया जाता है. ठीक है, ये एक्ट कब आया था, 1958 में ये एक्ट को जो है लेकर आए थे. आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पर बहुत स्पेशल पावर्स जो है दिया जाता है टू कंटेन और टू कर्ब द वायलेंस दैट इज इरप्टेड. ठीक है, जो भी वायलेंस होता है उसको कम करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दिया जाता है. पावर टू डिक्लेयर एरिया टू बी डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर सेक्शन 3 of the act, governor of the state or state administrator of the union territory or the central government, as the case may be, by notification or official gazette declared by whole or such part of a state or union territory to be a disturbed area. तो पावर जो है वो किनके पास है, गवर्नर के पास है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, दैट इज यूनियन होम मिनिस्ट्री. तो वो तीनों के पास पावर है कि अगर कोई भी जगह में अगर वायलेंस इरप्ट हो रहा है एंड हमें क्या लग रहा है कि और वायलेंट एक्टिविटीज़ हो सकता है,
देन वी कैन डिक्लेयर दैट एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड उसमें हम AFSPA लगा सकते हैं. डिस्टर्ब्ड एरिया इज एज एन एरिया इन सच डिस्टर्ब्ड और डेंजरस कंडीशन दैट that the use of armed forces in aid to civil power is necessary. Disturbed area वो एरियाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाता है और वहाँ पर आर्म फोर्सेस का मतलब जो आर्म फोर्सेस का वो जो पावर है उसको यूज़ करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि सिविलियंस को दिक्कत ना हो. ठीक है, सिविल जो इश्यूज है उसको सिविलियंस है उनको कोई दिक्कत नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसरी सिचुएशन बन जाता है. जो एरिया में ऐसा नेसेसरी सिचुएशन बन जाता है कि आर्म फोर्सेस का पास यस एक्स्ट्रा पावर्स होने चाहिए, उन एरियाज को हम क्या डिक्लेयर करते हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, हम उन एरियाज को क्या डिक्लेयर करते हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर करते हैं. स्पेशल पावर्स ऑफ आर्म फोर्सेज अंडर सेक्शन 4. एनी कमीशन्ड ऑफिसर, warrant officer, non-commissioned officer or any person equivalent to the rank in the armed forces is given special power under AFSPA, although they must be exercised with extreme caution. तो यहाँ पर कोई भी commissioned officer है, नॉन कमीशनड ऑफिसर है, वारंट ऑफिसर है, इन सब के पास पावर है कि उनके पास स्पेशल पावर्स जो है वो दिया जाता है, पर शर्त ये है कि ये जो पावर्स है ये काफ़ी एक्सट्रीम कॉशन के साथ आपको यूज़ करना है. ठीक है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ऑलवेज हर्ड इट. सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये पावर को यूज़ करना है. आप धड़ल्ले से जाके मार रहे लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए. After giving due warning as considered necessary, fire upon or use force, even causing death against any person or acting in contravention of laws. तो यहाँ पर मतलब अगर वार्निंग पहले आपको देना है और अगर नहीं है तो यू कैन यूज दी फोर्सेस. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लॉज क्या क्या है, मतलब असेंबली जो है 5 पीपल से ज़्यादा का हो रहा है अगर लोग असेंबल हो रहे हैं, अगर वो लोग वेपन्स जो है उसको कैरी कर रहे हैं, फायर आर्म्स को कैरी कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव एम्यूनिशंस को ये लोग कैरी कर रहे हैं, तो भी हम लोग प्रोहिबिट करने के लिए AFSPA का यूज़ कर सकते हैं. इफ़ रीजनेबल सस्पिशन जो है वो होता है देन दे कैन अरेस्ट पर्सन विदाउट अ वारंट, विदाउट अ सर्च प्रेमिस, मतलब वो लोग सर्च भी कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट. तो ये काफ़ी देख रहे हैं आपकी कितना एक्सट्रीम पावर्स जो है वो दिया जा रहा है. यू कैन यूज़ योर पावर, बहुत ज़्यादा पावर्स है. आप कहीं पे भी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, लाइक मार्शल लॉ, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट. आप लोगों को असेंबल नहीं होने दे रहे हैं. दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यू आर गिविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, unless otherwise authorized by central government, army soldiers operating under the AFSPA are shielded from all legal action. हर legal action से वो shielded है. They can arrest people, they can मतलब उस जगह का शांति बनाने के लिए they are given extraordinary powers. कोई भी उनके खिलाफ legal action जो है वो नहीं लिया जाएगा. So this is the armed forces special power tech. बहुत बार हमें देखने को मिला in Manipur, in Jammu and Kashmir, many times people, armed forces has misused their power. मतलब ये भी बहुत बार कंप्लेन आता है कि आर्म फोर्सेस इन मणिपुर स्पेशली बहुत बार ऐसा होता है कि वीमेन दे कम अप ऑन स्ट्रीट एंड दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी आर्म फोर्सेस बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ हो जाता है. एंड मेनी अ टाइम्स दी आर्म फोर्सेस हैज़ ऑल्सो यूज्ड द पावर्स, बहुत प्रिकैरियसली उन्होंने यूज़ किया है एंड दे हैव समटाइम्स अब्यूज द पावर. सो वो भी प्रॉब्लम रहता है, पर जो वायलेंस है उसको रोकने के लिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. AFSPA का जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टू कर्ब दी वायलेंस. ठीक है, वायलेंस को कर्ब करने के लिए ये पावर जो है दिया गया है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मणिपुर में 5 डिस्ट्रिक्ट में 6 पुलिस थानों में ये AFSPA का पावर जो है इन्वोक किया गया. ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्म फोर्सेस के पास ये पावर है. ठीक है, चलिए ये होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज नो डुअल इको क्लियरेंस फॉर 39 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको जैसे अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, ठीक है, जैसे कोई आपने सोलर एनर्जी का प्लांट बनाना है तो उसके लिए आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करना है. ठीक है, उसके लिए आपको सेल वगैरह, बैटरी वगैरह, जो सोलर प्लेट्स वगैरह है वो बनाना है आप लोग को. तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास आपको इंडस्ट्री सेट करने से पहले आपको 2 टाइप के क्लियरेंस जो है वो लेना पड़ता है. ठीक है, 2 टाइप के आपके क्लियरेंस है. तो अब क्या है कि ये अब पहले आपको मैंडेटरीली 2 सेट ऑफ आपके परमिशंस को लेना होता था. पहला था आपका कंसेंट टू एस्टैब्लिश, बनाने के लिए पहले आपको कंसेंट लेना होता था. दूसरा था कंसेंट टू ऑपरेट,
ये दो सेट ऑफ आपके लॉज थे कि आपका पहले कंसेंट ऑफ टू एस्टेब्लिश लेना होता था, उसके बाद आपको कंसेंट टू ऑपरेट लेना होता था। ये दो क्लियरेंस थे, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से लेने के बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बॉडी है, दैट इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी के पास भी आपको जाना होता था। तो ये क्या है, बर्डन हो जाता था, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस टाइप के जो लॉज है वो रोक देते। तो ये उस कंप्लायंस को कम करने के लिए एंड फास्टर मूवमेंट होने के लिए हमने यहाँ पर ये जो मैंडेटरी डुअल मतलब क्लियरेंस था उसको यहाँ पर हमने खत्म कर दिया, ठीक है। सेइंग दैट इट हैज मेड लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड बाय इंडस्ट्री, द यूनियन मिनिस्ट्री हैज एग्जेम्प्टेड 39 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रोचिंग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर परमिशन टू रन देयर इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाके ट्वाइस यू हैव टू टेक द परमिशन। बट अब जो 39 कैटेगरीज है उनको एग्जाम्प्ट यहाँ पर कर दिया। कौन कौन से यूनिट है देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ सोलर सेल, जैसे मैंने बताया आपको, विंड एंड हाइडल पावर यूनिट्स, विंड एनर्जी के लिए आप अगर कुछ ऐसे बना रहे हैं विंग्स वगैरह, तो वो फ्लाई ऐश से अगर ब्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। फ्लाई ऐश जो है ना उसको कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जब वो उड़ता है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन ये जो ब्रिक्स होते हैं ना, दीज आर मोर पावरफुल देन दी नॉर्मल जो ब्रिक्स है ना, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत स्टर्डी होते हैं। तो फ्लाई ऐश अगर आप ब्रिक्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली फ्लाई ऐश जो है क्या है, पॉल्यूटेंट है। तो आपने उस पॉल्यूटेंट से, उस वेस्ट से आप क्या बना रहे हैं, एक अच्छा चीज़, वेस्ट टू एनर्जी अगर आप बना रहे हैं, मतलब अच्छा एक चीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको डुअल क्लियरेंस लेना होता था। तो फ्लाई ऐश ब्रिक का जो इंडस्ट्री है उसमें भी अब नहीं चाहिए होगा, ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं चाहिए होगा, लेदर कटिंग स्टिचिंग में नहीं चाहिए होगा, असेंबलिंग, रिपेयरिंग, एयर सर्विसिंग, कूलर्स, एयर कंडीशनर इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है, इन सबको कौन से कैटेगरी में रखा है, वाइट कैटेगरी में रखा है। अब वाइट कैटेगरी कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं, जो लीस्ट पोल्यूटिंग इन नेचर होते हैं। मतलब 2016 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऐसे कुछ वाइट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को लिखा था, वाइट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब ये जो होते हैं लीस्ट पोल्यूटिंग होते हैं, पोल्यूटिंग होते हैं पर नॉर्मली से अगर आप देखें तो वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 39 ऐसे कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री जिनको वाइट कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि अभी उसमें उतना ज़्यादा आपका नहीं होता, इतना ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है। डुअल कंप्लायंस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कंप्लायंस बर्डन जो है ना ये कम हो जाएगा इंडस्ट्रीज का, और इंडस्ट्री जो है बेटर ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि उनको बहुत सारा पेपर वर्क वो नहीं करना पड़ेगा, बहुत बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट का। तो ये जो क्लियरेंस है इसको ईज डाउन करने की यहाँ पे बात की है। द गवर्नमेंट हैव एक्सेप्टेड अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्री टू रिमूव डुअल क्लियरेंस ऑफ डुअल कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री। पहले आपको कंसेंट टू एस्टैब्लिश लेना होता था, जो एसपीसीबी है उनके पास जाके आपको कंसेंट ऑफ टू एस्टैब्लिश आपको लेना होता है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री बनाएंगे, पहला वो कंसेंट दीजिए। उसके बाद क्या है, अब क्या है, और उसके बाद क्या लेना था कि कंसेंट टू ऑपरेट भी लेना होता था, नॉन पोल्यूटिंग जो वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री है। पर उन लोगों को अब इतना 2 बार 3 बार नहीं लेना होगा, डुप्लीकेशन ऑफ अप्रूवल आप लोगों को नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक बार अप्रूवल मिल गया, दैट इज इट, ठीक है। द ईजिंग ऑफ दीज नॉर्म्स also flows from amendment of Water Act earlier this year in Parliament। The Water Act को भी क्या है, अमेंड किया गया था, ठीक है, जो 1971 में 1974 में, ठीक है, इसी वाटर एक्ट के तहत ही हमारा सीपीसीबी को बनाया गया था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसी वाटर एक्ट के तहत ही बनाया गया था, ठीक है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 वाज द फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट आइडेंटिफाइड द नीड टू हैव एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू एड्रेस कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ये 1974 में ये एक्ट को लेकर आए थे हम, और यहाँ पर क्या है कि ये एक्ट को इसीलिए लाया गया था ताकि हम जो है पानियों में जो कंटामिनेशन है पोल्यूशन की वजह से, वो इस एक्ट के तहत जो है हम उस कंटामिनेशन को कम करने के लिए बात कर रहे थे। तो 1974 में पहली बार इस टाइप का कोई लेजिस्लेशन लाया था जिसमें हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं, और इसी के तहत हमारा सीपीसीबी बना। बहुत लोगों को लगता है कि पोल्यूशन जो है मे बी एयर एक्ट के थ्रू बना होगा, पर दिस इज रॉन्ग। पोल्यूशन पानी में भी होता है, वाटर पोल्यूशन। तो पोल्यूशन ये तो वाटर एक्ट के तहत ही ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो बोर्ड है उसको बनाया गया था, ठीक है। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ सीपीसीबी, मैंने अभी जैसे आपको बताया सीपीसीबी का क्रिएशन हुआ एंड एसपीसीबी का भी कनेक्शन हुआ, जो कि पब्लिक वाटर रिसोर्सेज में कंटामिनेशन को रोकने के लिए ये दोनों बॉडीज को बनाया गया था। पर उसके बाद क्या हुआ, दोनों का जो पावर्स है उसको एक्सपैंड कर दिया गया। नाउ दे ऑल्सो लुक एट एयर एक्ट, मतलब एयर एक्ट के अंतर्गत इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट के तहत भी उनके पास कुछ पावर्स है। तो उनका जो है यहाँ पर उनके जो आपके रेंज
है उसको एक्सपैंड यहाँ पर काफ़ी हद तक कर दिया गया था, ठीक है। सम ऑफ द अमेंडमेंट्स गिव सेंटर ग्रेटर पावर्स एंड अथॉरिटी टू ओवरराइड एसपीसीबीज इन सम इंस्टेंसेस एज पर द ओरिजिनल एक्ट। द एसपीसीबीज परमिशन, एसपीसीबी इज स्टेट बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, परमिशन इज नीडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग एनी इंडस्ट्री और ट्रीटमेंट प्लांट विच कुड डिस्चार्ज सीवेज इनटू वाटर बॉडी सीवर और लाइन। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि मतलब कभी कभी जो है ना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओवर राइडिंग पावर्स होते हैं ऑब्वियसली। तो ये जो ओवर राइडिंग पावर्स है वो अमेंडमेंट पे यहाँ पर क्या गया कि ये जो अमेंडमेंट जब हुआ, ये जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से क्या है कि अब जो है एसपीसीबी से उतना ज़्यादा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरेंस दे देता है देन यू आर गुड टू गो। आपको डुअल जो है क्लियरेंस नहीं चाहिए, डुअल अप्रूवल आपको नहीं चाहिए। तो दिस इज़ द एक्ट एंड दिस इज़ द legislation that has been brought out by the government and ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आई डोंट थिंक आपको बताना होगा कि इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट पोर्शन आपको करना है एंड दिस इज़ वन ऑफ द कोर पोर्शंस। पोल्यूशन का पूरा हिस्सा जो है, जब पोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पूरे पावर्स के बारे में आपको पता चलेगा, सब कुछ आपको समझना होगा। एंड एसपीसीबी सीपीसीबी इसके बारे में उनके क्या पावर्स हैं, उनके तहत कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है, एक्ट्स के बारे में आप लोगों को ज़रूर से जानना होगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पुअर अनियन टोमेटो पोटैटो क्रॉप पुशिंग अप प्राइसेस सेज सेंटर। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता होगा कि हमारे जो प्याज है, टमाटर है एंड आलू है, ठीक है, पोटैटो, टोमेटो एंड अनियन, ये जो तीन का कॉम्बिनेशन है ये हमारे घरों का स्टेपल है। अगर आप घर में आपके पास कुछ ना हो लेकिन आपके पास ये तीन स्टेपल फूड आइटम्स इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया यू विल सी। व्हाई? बिकॉज ये तीनों हमारे जो खाने का जो मतलब यू नो द थिंग दैट वी ईट वो इन तीनों से ही बनता है, ठीक है। एवरी फूड आइटम वुड हैव वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स दैट वी ईट इन इंडिया, ठीक है। ईदर ऑफ दीज थ्री थिंग्स यहाँ पर आपके खाने में होगा ही होगा। यू कैन चेक इट इन योर फूड। अगर आज भी अगर आप लोग अपना खाना देखेंगे यू विल सी टमाटो, ओनियन एंड पोटैटो। मतलब ये हमारे खाने का स्टेपल फूड है, ठीक है। ये हमारा मतलब कोर फूड है। लेकिन इन्हीं तीनों का प्राइस जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज्ड है। एंड इस प्राइस इंक्रीज जब होता है ना देन हमें एज कंज्यूमर्स हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्राइसेस ऑफ टमाटो, ओनियन एंड पोटैटो, थ्री एसेंशियल वेजिटेबल्स ऑफ इंडियन हाउस होल्ड, तीनों एसेंशियल वेजिटेबल्स है इंडियन हाउस होल्ड के, रिमेन हाई कंपेयर्ड विथ लास्ट ईयर्स, द यूनियन गवर्नमेंट सेड ऑन थर्सडे। क्यों ज़्यादा है? वाई? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन की कमी। मैं जो आपको डेली बात बताती हूँ कि प्रोडक्शन कम होगा दाम बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा दाम बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो दाम ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ेगा। Remain high compared with last year's, the union government said on Thursday that excess rainfall during the year had impacted the production of these commodities and pushed up their prices। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस साल जो है एक्सेस में रेनफॉल हुआ एंड 2-3 बार तो साइक्लोन्स भी आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट है ना इसका प्रोडक्शन में कुछ कमी आई एंड उसके वजह से प्राइसेस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। The Union Consumer Affairs Ministry said that price variation of these three kitchen staples under the previous UPA government was much higher when compared to the first 10 years of we don't have to look at this, ठीक है। ये गवर्नमेंट का अपना स्पैट्स जो है वो चलते रहता है। हमें क्या देखना है, यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रोल है, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल है टाइमली इंटरवेंशन, ठीक है। टाइमली इंटरवेंशन जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। कि टाइमली कैसे हम इंटरवीन करेंगे, कि टाइमली कैसे इंटरवीन कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन एक्स्ट्रा बफर जो है उसको रिलीज कर सकती है, ठीक है। प्राइस को स्टेबल कर सकती है, जैसे टमाटो का प्राइस को यहाँ पर वो फिक्स करने की बात कर रही है, ठीक है। तो टमाटो प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। अनियन का जो बफर है उसको हम रिलीज करेंगे तो प्राइसेस स्टेबल होगा, बिकॉज अनियन क्योंकि जब मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली कम डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइमली इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट सच एज सेल ऑफ टमाटो एट फिक्स प्राइस व्हेन प्राइस वे सर्जिंग, जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको फिक्स प्राइस में कर देने के लिए, अनियन बफर को रिलीज करने के लिए, ठीक है। प्राइस स्टेबल होगा अगर अनियन का बफर जो है वो अगर हम उसको रिलीज करेंगे तो प्राइस भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मंथ ऑन मंथ वेरिएशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा,
बहुत बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है, एंड डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है इन दीज 3 स्टेपल्स, ठीक है। डबल डिजिट इंक्रीज हमें देखने को मिला है ये दोनों में, हमको डबल डिजिट इंक्रीज जो है फ्रॉम प्रीवियस मंथ टू दिस मंथ, ठीक है। आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड, आज के न्यूज़पेपर में आया 11.2% के आसपास जो है प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। एंड क्योंकि अब भी अगर अभी भी आप अगर मार्केट में जाएंगे, इट इज़ अराउंड रुपीज़ 190-70 इस टाइप से ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये प्राइसी फूड है। जब इस मतलब बिकॉज खरीफ का क्रॉपिंग खत्म हुआ, रबी शुरू हुआ है, तो बिकॉज कटिंग प्रोडक्शन खत्म हो गया, तो अभी प्राइसेस थोड़ा स्टेबल होना चाहिए था, पर अभी भी हमें अनस्टेबल प्राइसेस जो है वो देखने को मिला, बहुत वॉलेटाइल प्राइसेस है, बहुत फ्लक्चुएशंस है, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इस पर गवर्नमेंट का सबसे मेजर रोल रहेगा यहाँ पर इंटरवेंशन, एंड गवर्नमेंट अभी करेगी भी, सो वी विल लुक इनटू दैट, ठीक है। जैसे न्यूज़ आएगा हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्राइसेस जो है वो तो सोरिंगली इंक्रीज है ही, ठीक है। यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छे से रिवाइज करना होगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.